तेलंगाना स्टेट हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने इब्राहिमपट्टनम के सरकारी अस्पताल में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन की नाकामी और 4 खवातीन की मौत के वाक़े पर वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा है कि 34 खवातीन के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किए गए थे जो माहिर डॉक्टरों ने किए थे, ताहम बदकिस्मती से 4 खवातीन फौत हो गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इस तरह का वाक़या कभी पेश नहीं आया। रियासती हुकूमत इस वाक़े को बहुत संजीदगी से लेकर तहकीकात करवा रही है। श्रीनिवास राव ने बताया कि तमाम पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है और अंदरून 1 हफ्ता रियासती हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीगर खवातीन की सेहत बेहतर है और किसी की जान को खतरा नहीं है। हेल्थ डायरेक्टर ने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन को बाकायदा अमल बताते हुए कहा कि मुल्क में इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि फौत होने वाली खवातीन के अफराद खानदान के लिए ఎక్స్గ్రేషియా का ऐलान किया गया है। మనమే నిర్ణయం తీసుకొని మనమే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కాబట్టి మీరు ముందుకు వచ్చేసేసి ఇలాంటి శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడం ద్వారా మన మహిళల ఆరోగ్యాన్ని మరింత మెరుగ్గా పరిరక్షించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ప్రభుత్వం రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా, ఎందుకంటే మా గవర్నమెంట్ మంత్రివర్యులు ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు, మొత్తం అన్ని రకాల కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. హాస్పిటల్స్లో కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా వీటికి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ ఆడిట్ చేసుకోవటం, అలాగనే ఉన్న సర్జన్స్కి రీఓరియంటేషన్ చేసుకోవటం. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒక సర్జన్ ద్వారా కానివ్వండి, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల ద్వారా కానివ్వండి ఈరోజు సంఘటన జరిగిందని చెప్పేసి మనం పూర్తిగా అనుకోలేం. అంటే కంప్లీట్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనకి తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్ ఏదైతే ఉందో మనకి అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆహారం, వాళ్ళు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకున్నారు, లేదా వారు తీసుకున్న వాటర్ ఎలాంటి వాటర్ తీసుకున్నారో ఆ రోజు అది ఏమైనా కలుషితమై ఉన్నదా, దాని ద్వారా ఈ గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అయ్యి సెప్సిస్గా పరిణమించిందా, ఇవన్నీ కూడా విషయాలు మనకి రాబోయే రోజుల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకి పూర్తిగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే మనకి కాజ్ ఆఫ్ డెత్ జరిగే అవకాశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక 4 మహిళలే ఈ రోజు జరిగింది. మిగిలిన 30 మంది మహిళలు ఉన్నారో ఒకళ్ళిద్దరికి చిన్న చిన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ తప్పితే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా సేఫ్గా ఉండటం జరిగింది. లేకపోతే స్టెరిలైజేషన్స్ ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయో, పరికరాలు ఉంటాయో, ఆ స్టెరిలైజేషన్స్లో ఎక్కడ ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగినాయా, ఇవన్నీ కూడా పూర్తి పారదర్శకంగా రాబోయే రోజుల్లో విచారణ జరిపేసి ఒక వారంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ నివేదికని సమర్పించడం, ఆ తర్వాత పర్మనెంట్గా దీనికి సంబంధించిన స్టెప్స్ ఏమన్నాయో ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పేసి మీ ద్వారా ఈరోజు ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. వన్ ఆఫ్టర్ రాలేదమ్మా పోస్ట్ నో మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. పోస్ట్ మార్టం అనేది ఒక 2-3 అవర్స్ 4 అవర్స్ ప్రొసీజర్ అయిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా ఆ ఎక్స్పర్ట్, ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఎనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగనే కొన్నిసార్లు విస్రా ఇవన్నీ కూడా ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్స్ పంపించేసేసి ఆ రిపోర్ట్స్ రావడానికి మినిమం ఒక 3 డేస్ నుంచి 5 డేస్ పంపించిన రిపోర్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత పోస్ట్ మార్టం జరిపిన డాక్టర్ వాళ్ళ టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్తో కూర్చొని ప్రభుత్వానికి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది నా నివేదికలో కూడా అదొక భాగంగా ఉంటుంది. వితిన్ 7 డేస్లో ఈ రిపోర్ట్స్ వచ్చేటట్టు నా రిపోర్ట్ రెడీ అయ్యేంత వరకు తప్పనిసరిగా ఈ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్స్ దానికి యాడ్ అయ్యి ఇంకా మోర్ పకడ్బందీగా రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అమ్మా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, నేను గత రాత్రి 2 గంటలకు నేను అపోలో హాస్పిటల్లో ఉన్నాను. రాత్రి వాళ్ళ 7 పేషెంట్స్ను కూడా ఇవన్నీ కూడా కేవలం ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా వాళ్ళ కుటుంబాలు కానివ్వండి, ప్రజలు కానివ్వండి ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా వాళ్ళని అక్కడ తీసుకొని రావడం జరిగింది. వాళ్ళకి కంప్లీట్గా హెల్త్ స్క్రీన్ చేయడం జరుగుతుంది, అన్ని రకాల పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది, స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ కూడా ఏదైనా అవసరమైతే, రిక్వైర్మెంట్ అవసరమైతే వాళ్ళని అన్ని రకాల కేర్ తీసుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేయడానికి తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగానే ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా చేస్తున్నాం. అక్కడ 7 అపోలో హాస్పిటల్లో కానివ్వండి, లేదంటే ఇంకొక 2 ఈరోజు నిమ్స్ కూడా ఇప్పుడు మార్నింగ్ స్క్రీన్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 నిమ్స్ కూడా తరలించడం జరిగింది. I'll come one after another. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। उनका कहना है कि पार्टी लीडरों को जैसे चाहे खरीदा जा रहा है। टीपीसीसी सदर ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने नलगुंडे के साथ नाइंसाफी की है। पालामुरू आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मरकजी और रियासती हुकूमतों की धोखाधड़ी पर भी रेवंत रेड्डी ने तनकीद की और कहा कि हुकूमतें उन मसाइल पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं और डाइवर्ट पॉलिटिक्स कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से जमहूरियत मुखालिफ सरगर्मियों पर रेवंत रेड्डी ने नुक्ताचीनी की। उनका कहना है कि कलेक्ट्रेट की इफ्तिताही तकरीब में प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि
रियासती हुकूमत धरनी के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दीगर रियासतों के किसानों को मुआवजा देने के ऐलान पर कांग्रेस बीजेपी कायदीन में नाराजगी देखी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने भी मुआवजा देने के ऐलान पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और कहा है कि रियासत के किसानों को कई मसाइल का सामना है, लेकिन सीएम केसीआर उन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्हें रियासत के किसानों की परवाह नहीं है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि अगर सीएम केसीआर यात्रा निकालते हैं तो वो अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के चौथे मरहले को मुलतवी कर देंगे। बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के इस बयान पर भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि वो अपोजिशन जमातों को अपने इलाकों का दौरा करने की इजाजत ना दें। आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी कायद ने कहा कि उनकी प्रजा संग्राम यात्रा के रद्द अमल की वजह से कोल्ड फीड तैयार किया गया है और केसीआर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। केसीआर लोगों के परेशानियों को जानने और उन्हें हल करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रजा संग्राम यात्रा निकाली। बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के किसानों पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। केसीआर की जानिब से दीगर रियासतों के किसानों को एक्सग्रेशिया देने पर बंडी संजय ने तनकीद की है और तेलंगाना के किसानों के मसाइल की यकसुई पर जोर दिया है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कुकटपल्ली हलके के राजीव गांधी नगर में माधवरम रामचंद्र राव मेमोरियल स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस स्कूल को एमएलसी नवीन कुमार ने 90 लाख रुपए के फंड से तामीर करवाया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। वो तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल वेलफेयर स्कूल्स में तलबा को तालीम के साथ साथ मियारी ग़िज़ा भी फराहम की जा रही है और गुरुकुल्स के क़याम के बाद से प्राइवेट स्कूल्स के तलबा गुरुकुल्स में दाखिला लेने के लिए कोशा हैं। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में एमएलए माधवरम कृष्णा राव, कलेक्टर हरीश व दीगर ने शिरकत की। पंचायत राज मिनिस्टर ई दयाकर राव ने फील्ड एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद की गई फील्ड असिस्टेंट्स एप्रिसिएशन मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए ई दयाकर ने कहा कि तेलंगाना रोजगार के मौके फराहम करने में मुल्क के पहले मुकाम पर है और यही वजह है कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना को तरक्की से रोकने और रोजगार जमानत स्कीम को मनसूख करने के लिए साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो फील्ड असिस्टेंट्स के मसाइल पर केसीआर को तवज्जो दिलाएंगे और उन्होंने गरीबों के साथ भलाई करने और अच्छा काम करने का सभी को मशवरा भी दिया। ई दयाकर राव ने कहा कि अगर फील्ड असिस्टेंट्स अच्छी तरह से काम करते हैं तो वो अगले साल उनकी तनख्वाहों में 5% इजाफे के लिए केसीआर से नुमाइंदगी कर सकते हैं। इस इजलास में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, मर्री राजशेखर रेड्डी, टीआरएस लेबर विंग के सदर राम बाबू, फील्ड असिस्टेंट्स एसोसिएशन के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस के नलगोंडा रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के लिए एआईसीसी उम्मीदवार के नाम को खतियत दी गई है। साबिक टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुनुगुडु के उम्मीदवार से मुताल्लिक पीसीसी की तजावीज़ एआईसीसी को भेज दी गई हैं और एआईसीसी ही मुनुगुडु के लिए उम्मीदवार को मुंतखब करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम पार्टी कारकुनान को मिलजुल कर काम करने का मशवरा दिया। कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने वाले गुलाम नबी आज़ाद पर तबसरा करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद 50 सालों का तजुर्बा रखते हैं और वो कांग्रेस पार्टी से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। उन्होंने गांधी ख़ानदान पर जो तबसरे किए हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। कांग्रेस रुकने पार्लिमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीबी और ईडी की तहकीकात होनी चाहिए। मुतनाज़ा बीजेपी लीडर राजा सिंह पर बरहमी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िरका वाराना फसाद भड़काने के लिए राजा सिंह ने ऐसा बयान दिया। उन्होंने असम्बली स्पीकर से राजा सिंह को कानून साज असम्बली की रुकनियत से मनसूख करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करते हुए उसे सजा देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना भरोसा मंच की जानिब से आज मलून बीजेपी लीडर राजा सिंह की तायद में एहतजाज किया गया। जैसा कि सभी जानते हैं, राजा सिंह ने शान रिसालत में गुस्ताखी की और मुतनाज़ा बयानात दिए और दीगर जराए में मुलविस होने के सबब पुलिस की जानिब से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जेल में वो महरूस है। राजा सिंह के हामियों में राजा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर नाराज़गी पाई जा रही है और वक्तन फ़ौक़्तन उसकी तायद में रैलियां निकाली जा रही हैं और गिरफ्तारी की मजम्मत की जा रही है। तेलंगाना भरोसा मंच के सदर राकेश जायसवाल की ज़ेर निगरानी
तेलंगाना भरोसा मंच के अरकान ने शहर के मौजम जाही मार्केट चौराहे पर पुरअमन एहतजाज किया। सभी ने राजा सिंह की ताईद में नारे लगाए। राकेश जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और टीआरएस समेत एमआईएम पर भी शदीद नुक्ताचीनी की। नमस्कार, मैं राकेश जायसवाल तेलंगाना भरोसा मंच नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज तेलंगाना नहीं बल्कि पूरा भारत देख रहा है कि किस तरह टीआरएस और एमआईएम ने मिलके हमारे लोकप्रिय यशस्वी हिंदू सम्राट उदय सम्राट राजा सिंह भाई को जेल में डाला गया है। इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में जो सबसे बड़ा लिकर स्कैम हो रहा है, उस लिकर स्कैम में केसीआर के फैमिली के लोग भी है। ये ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये साजिश करके हमारे भाई को जेल में भेजा है। आपको मालूम है, केटीआर से पूछना चाहता हूँ, एक बार आप अपने माँ बाप के पास बैठो और पूछो कि आपका नाम रामाराव क्यों लगा है। राम जी वो अवतार है जो हिंदुस्तान में, पूरे देश में, दुनिया में एक पुरुषोत्तम राम कैसे कहलाता है। मैं हमारे एमएलए साहब राजा भाई एक नहीं 4 बार बोल चुके हैं कि मुन्नूर फारूकी जो कुत्ता है वो प्रोग्राम उसका बंद करो, इससे दंगा फसाद होने वाला है। मगर हमारे केटीआर साहब, हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब कोई सुने नहीं। मैं समझता हूँ ऐसा दंगा फैलाने से टीआरएस को माइनॉरिटी वोट मिलते बोल तो ऐसी गली दाली में हम इज्जत नहीं रखते। और देख रहे हैं कि छोटे छोटे लीडर एक गोशामल को रशीद खान बोल के बड़े बड़े बातें कर रहा, मैं गोशामल जलाता हूँ बोल के। अरे भाई, पहले अपने घर का तो स्टोव तू जला, उसके बाद गोशामल खुद गोशामल की आग लगे तो खुद जल जाएगा। और हमारे और एक नेता है फिरोज खान, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बातों में कहा काबी राजा सिंह है तो मारो। अरे भाई, 2 बार आपको नामपल्ली में हरा के आपको जूते मारे और फिर मारो बोल रहे क्या भाई। मैं फिर एक बार सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम पूरा गोशामल नहीं बल्कि तेलंगाना नहीं बल्कि भारत पूरा राजा भाई के साथ है। हम हमेशा राजा भाई के साथ रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बशीराबाद पुलिस ने एक 3 साला लड़के के कत्ल में मुलविस उसकी मां और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। सेंट्रल जोन डीसीपी राजेश चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पिछले महीने एक 3 साला लड़के के कुर्सी से गिरकर जख्मी होने और शदीद चोटें आने से उसकी मौत होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन का आगाज किया था और शुबा होने पर पुलिस ने पीएमई रिपोर्ट हासिल करते हुए वाक़े की तफसीली जांच की थी। डीसीपी ने बताया कि दौरान तफ्तीश पुलिस को ये इंकशाफ हुआ था कि पारसी गुट्टा के रहने वाली खातून और उसके एक दोस्त ने गैर अज़वाजी ताल्लुकात की वजह से 3 साला लड़के का कत्ल किया था। डीसीपी ने बताया कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। डीसीपी ने इस केस की छानबीन करने और कातिलों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम की तारीफ करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सबको नमस्कार। पिछले महीने 8 तारीख को मुशीराबाद लिमिट्स में एक कंप्लेंट आया था कि एक बच्चा गिर के एक्सीडेंट में मर गया बोल के। इमीडिएटली मुशीराबाद पुलिस 174 सेक्शन के मुताबिक एक केस रजिस्टर करके उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में वी हैव टेकन पीएमई रिपोर्ट। वो पीएमई रिपोर्ट में बॉडी में पूरा इंटरनल इंजरीज एंड एक्सटर्नल बहुत सारा इंजरीज दिखाए गए हैं। वो एक्सीडेंट के मुताबिक लगा हुआ इंजरीज नहीं है, तो उसके हिसाब से मुशीराबाद पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी यादगिरी, एसएचओ जहांगीर एंड एसआई, ये तीनों मिलके एक टीम बना के वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द एंटायर इंसिडेंट। इसके बाद आज सुबह इसमें जो मेन अक्यूज है रवि और 1 मोर सपोर्टिंग अक्यूज है नागलक्ष्मी, उन दोनों को पकड़ा गया है एंड उनको इंक्वायरी किया गया है एंड ही हैज़ कन्फेस्ड दैट दे बोथ आर इन ए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड जब भी वो लोग मिलते थे उस टाइम पे बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो बच्चे को एलिमिनेट करने के लिए दे हैव प्लान
उस बच्चे को एलिमिनेट करके वो दोनों लोग एलोप होने का प्लान था। इसके हिसाब से 8 तारीख को सुबह स्कूल में ड्रॉप करने के बाद बच्चे को जो नागलक्ष्मी है उसको हस्बैंड को लेके हाईटेक सिटी तरफ गई है इन द सर्च ऑफ ए जॉब। उस टाइम में नागलक्ष्मी ने रवि को बताया कि उस बच्चे को लेके ख़त्म करने के लिए, तो रवि स्कूल जाके वो बच्चे को ही हैज़ गॉट हिम टू द होम। वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, पेनिट्रेशनल सेक्स के लिए उसने ट्राई किया है। और उसके अलावा एक आयरन पेडेस्टल से भी उसने इंजरी करने के लिए भी ट्राई किया है, इंसर्ट करने के लिए ट्राई किया है। एंड उसके बाद बहुत सारा बॉडी पे अलग अलग प्राइवेट स्पार्ट पे उसने उसका फिश से मारा है। तो पूरा पीएमई रिपोर्ट में जितना सारा इंजरीज है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग, वो पूरा रिकॉर्डेड है। जब हमने पीएमई रिपोर्ट रिसीव किया है, आवर सस्पिशियस गॉट confirmed and we have apprehended these 2 accused today morning at पारसीगुट्टा। एंड वो लोग कन्फेस किया है कि उसने वो दोनों मिलके ये काम किया है। तो इतना एक टीम वर्क में लीड करके बहुत अच्छे तरीके से इस केस को डिटेक्ट किया है। आई कंग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ सीपी हैदराबाद टू यादगिरी, जहांगीर एंड सुरेंद्र। थैंक यू। शहर हैदराबाद के इलाके हैदरगुड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा की नई ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया है। इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद के रीजनल हेड रविपाती श्रीनिवास, बैंक अमला, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैदराबाद जोनल हेड मनमोहन गुप्ता व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हैदराबाद जोनल हेड मनमोहन गुप्ता ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर बैंक की जानिब से तिरंगा डिपॉजिट स्कीम पेश की जा रही है और डिपॉजिट्स पर सारिफीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए मुनाफा बख्श सूद की पेशकश भी मुहैया करवाई जा रही है। बैंक हर किस्म के सारिफीन के लिए मुफीद खिदमात फराहम करेगा। जोनल हेड के मुताबिक छोटे ताजरीन के लिए हर किस्म के लोन्स और बैंक खिदमात भी दस्तयाब रहेंगी। केशव मेमोरियल तालीमी इदारों के सेक्रेटरी एवी सुब्रमण्यम ने तुलबा से कहा है कि वो मिट्टी से बने गणेश की पूजा करें और माहौल को बचाएं। गणेश त्यौहार के पेश नज़र आज नारायणगुड़ा के केशव मेमोरियल इंस्टीट्यूट में गणेश महोत्सव प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और तुलबा में मिट्टी के गणेश तकसीम किए गए। उन्होंने गणेश त्यौहार की अहमियत बयान की और कहा कि गणेश त्यौहार तहरीक आज़ादी के दौर से ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी नौजवानों पर आयद होती है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एवी सुब्रमण्यम ने मिट्टी के गणेशों की पूजा करने और आलूदगी से पाक माहौल क़याम करने के लिए सभी से ताउन करने की भी अपील की है। टीएस बसवा केंद्र हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम श्री राम कॉलोनी विजया लक्ष्मी गार्डन्स में एक मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। अपोलो अस्पताल के माहिरीन डॉक्टरों ने इस तिब्बी कैंप में हिस्सा लेकर मरीजों की जाँच की। बताया गया है कि हेल्थ कैंप से मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने इस्तिफादा हासिल किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए टीएस बसवा केंद्र के सदर डॉक्टर नागनाथ माशेट्टी ने बताया है कि फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है और मुकामी लोगों की जानिब से अच्छा रद्द अमल हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि जनरल, कार्डियोलॉजी, आर्थोपेडिक और गायनोकोलॉजी के माहिरीन डॉक्टरों ने मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा है कि गरीब तलबा को ज़रूरी इमदाद फराहम की जा रही है और मुख्तलिफ समाजी खिदमात पर मुश्तमिल प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। श्री शलम मंदिर बोर्ड के साबिक़ मेंबरान मल्लिकार्जुन प्रसाद, कांग्रेस लीडर एस श्रीनिवास गौड़ और बीजेपी लीडर गणेश ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। उपल रुकन असम्बली वी सुभाष रेड्डी ने 100 अहल अफराद में आज आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक़िद इस प्रोग्राम में कापरा सर्कल के मुख्तलिफ ज़ुमरों के 1883 पेंशनर्स और उपल सर्कल के 4023 पेंशनर्स को अहल करार दिया गया, जबकि 100 लोगों को कार्ड्स दिए गए। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स, कापरा म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर, उपल म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर, टीआईएस पार्टी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरीज, इस्तिफादा कुनिंदगान, टीआईएस कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। बीएसपी लीडर अरविंद कुमार और हल्का असम्बली गोशा महल के मुकामी अफराद ने हैदराबाद जिला कलेक्टर को एक यादाश्त पेश करते हुए एमआईएम और कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
बीएसपी लीडर अरविंद कुमार का कहना है कि कांग्रेस लीडर फिरोज खान और राशिद खान ने हल्के गोशा महल को आग लगाने की धमकी दी है, जबकि एमआईएम लीडर्स ने मुतनाज़ा नारा लगाया है, जिसके सबब गोशा महल की आवाम दहशत ज़दा है। गोशा महल के मकीनों और बीएसपी लीडर ने हैदराबाद कलेक्टर से इस मामले में मुदाखलत करने, मुताल्लिका हुकाम को एमआईएम कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात जारी करने और उनके साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त की है। महल के दलित सबको जय भीम। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी का निवासी हूँ। मेरे साथ ही साथ हमारे दलित समाज के भाइयाँ अनिल जी, महेश जी, अरुण जी, प्रमोद जी, राजकुमार जी हैं। आज हम सब लोग मिलकर कलेक्टर जी को एक मेमोरेंडम दिए थे। ये मेमोरेंडम का मामला कि एक हफ्ते के नीचे जो हिंदू मुसलमान के पीछे लड़ाई हुआ था एक वीडियो के नाम से, उसके हिसाब से थोड़े जने एमआईएम के पार्टी के लीडर और कांग्रेस पार्टी के लीडर रशीद खान, फिरोज खान बाबा साहब के अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान को बेखतर करते हुए ओपनली गोशा महल को जला देते, गोशा महल को मार देते। अगर राजा सिंह जी को अरेस्ट नहीं करे तो हम गोशा महल को जलाकर राख कर देते, सर तन से जुदा कर देते बोल के ओपनली टेरर स्टेटमेंट दिया। वो इसके हिसाब से बहुत जने कंप्लेंट दिए, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिए। हम कलेक्टर जी से गुजारिश किए कि जो रशीद खान, फिरोज खान जो ओपनली टेरर धमकी दिए उनके ऊपर एक्शन दिए। साथ ही साथ जो ये स्टेटमेंट दिए हमारे बीसी समाज के लीडरों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लड्डू यादव जी, नितिन नंदकर जी और बहुत सारे बीसी समाज के लीडरों जो राजा सिंह जी को समर्थन कर रहे, उनके घरों पे जाके अटैक करना, उनको धमकियां देना, ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दिए। हम सभी एमआईएम लीडर, कांग्रेस के लीडरों को हम दलित समाज के मेंबर ओपनली बोल रहे, अगर आप हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब के संविधान को पालन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जीना है तो बाबा साहब दिए हुए संविधान को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आपको कुछ तकलीफ हो तो पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट को जाओ, ऐसे ही। लेकिन हम मार देते, जला देते बोल तो रुकने वाले कोई भी नहीं है, डरने वाले कोई भी नहीं है। याद लगा लो, अगर आप बाबा साहब को रिस्पेक्ट नहीं करो तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी दलित भाइयाँ हैं सब लोग एकजुट हो जाते। अगर हम एक हुआ तो पूरा हिंदुस्तान में आग लगा देते। जय भीम। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,439 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कोरोना केसों की कुल तादाद बढ़कर 4,44,21,162 हो चुकी है और एक्टिव केसों की तादाद घटकर 65,732 हो गई है। मरकजी महकमा सेहत ने कहा है कि एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.15% है, जबकि कौमी सतह पर कोविड-19 से सेहत याब होने वालों की शरह 98.6% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस से सेहत याब होने वालों की तादाद 4,38,25,024 हो गई है, जबकि अमवात की शरह 1.19% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 212.7 करोड़ अफराद कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं।